نمل، اور تم میرے لیے کیا کرو گی؟ وہ اب بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ فارس قاضی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس نے سینے پہ لپیٹے بازو کھولے اور ایک ہاتھ میں پکڑا طے شدہ کاغذ دور سے دکھایا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی؟ میری شکل پہ لکھا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ خیر تم اس کی لکھائی پہچان لینا، یہ اسی نے لکھا ہے۔ لیکن کاغذ والا ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ میں تمہیں یہ تب دوں گی جب تم مجھے وکیل کا نام بتاؤ گی۔ سعدی آنکھوں کی پتلی نہ سکیڑے کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ فارس قاضی کو معلوم ہے میں کہاں ہوں، کس کے پاس ہوں، وہ سب جانتا ہے۔ اب نام بتاؤ۔ وہ جیسے فیصلہ کر کے آئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لی، لیکن میں وکیل کا نام صرف ہاشم کو بتاؤں گا۔ ہاشم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اس کے ابرو ناخوشی سے بھنجے۔ درمیان میں نہیں، سعدی نے غور سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ اس وقت تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ آبدار کرنٹ کھا کر دروازے کی طرف پلٹی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، سعدی نے ایک دم جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ لیا تھا۔ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اس نے اگلے ہی لمحے خود کو شستر اور خالی ہاتھ کھڑے پایا۔ قید خانہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے مس۔ محفوظ سا کھڑا ہو کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور کاغذ کھول کر ایک نظر ان الفاظ پہ ڈالی، پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ شوق سے نکل آئی تھی اور غصہ اس کی آنکھوں میں بہہ رہا تھا۔ واپس کرو، گارڈز کو بلا لو، وہی مجھ سے چھین سکتے ہیں اب یہ۔ اوکے فائن، اب تمہیں یہ مل گیا، اب مجھے بتا دو۔ ذرا بے بسی بھری خفگی سے سینے پہ بازو لپیٹے بولی۔ سعدی نے ایک دفعہ پھر ان حروف کو پڑھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا نا، ہاشم کو بتا دوں گا تو اسی کو بتاؤں گا نام۔ ابھی نے آہستہ سے کاغذ تھاما، کچھ دیر لب کاٹتی رہی۔ غصہ قدرے کم ہوا۔ تمہیں سمجھ آ گیا وہ تمہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہمن کا کیا مطلب ہوا؟ اچنبھے سے استفسار کیا۔ خودکشی، وہ جل کر بولا تھا، اس پیغام پہ جیسے اسے غصہ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے۔ ان کا دماغ خراب ہے۔ آبدار چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس آدمی کا دماغ ہرگز خراب نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی فارس قاضی کو، وہ جھلایا تھا۔ وہ ہاتھوں سے سوچتے ہیں، ان کا غصہ ان کی ججمنٹ کو دھندلا دیتا ہے، اسی لیے ہمیشہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہاں اتنے مہینے سے قید ہوں، ان کو معلوم ہے میں کہاں ہوں، پھر بھی مجھے بچانے نہیں آئے۔ وہ شکوہ کر گیا تھا۔ سعدی یوسف، مجھے نہیں پتا تم انسانوں کو کتنا پہچانتے ہو، لیکن میں ایک عامل تنویم ہوں، مجھے انسانوں کو پڑھنا آتا ہے، اور جس فارس قاضی سے میں ملی تھی وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم اس کو جانتے ہو۔ شاید وہ کبھی ویسا رہا ہو، لیکن اب نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا ان حروف کا کیا مطلب ہے، لیکن تمہیں ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ اس کی بری آنکھوں کو دیکھتے ہمدردی سے آواز آہستہ کی۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کوئی نہیں آئے گا، نہ میں، نہ فارس قاضی، نہ تمہارے خاندان میں سے کوئی۔ اور تمہیں یہاں سے صرف ایک شخص نکال سکتا ہے، اور اس کا نام ہے سعدی یوسف۔ تمہیں اپنے آپ کو خود ریسکیو کرنا ہوگا۔ آپ کے گارڈز کی مہربانی سے انہوں نے میری لاک پک بھی آج چھین لی ہے۔ لاک پک؟ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلی۔ تمہیں لگتا ہے یہ لاک پک سے کھلنے والے دروازے ہیں؟ یہاں ریٹینا سینسرز لگے ہیں سعدی یوسف، ان کو یہ گارڈز بھی نہیں کھول سکتے۔ ویسے میں نے تمہاری پروفائل پڑھی تھی جو فصیح نے بنا کر دی تھی۔ تم سعدی، تم فارس قاضی نہیں ہو جو ہر لاک کھول لو یا ان گارڈ سے ہاتھا پائی کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ نہ تمہیں لڑنا آتا ہے، نہ گن چلانی آتی ہے، نہ ان دروازوں کے لاک کھولنا آتے ہیں۔ فصیح نے بتایا تم نے ہاشم کے ڈاکومنٹس بھی چرائے تھے، مگر تم کمپیوٹرز میں بھی اتنے اچھے نہیں ہو، تم ان کی انکرپشن کو بھی نہیں کھول سکے۔ نہ تم اچھے بلیک میلر ہو، نہ ہی پڑھائی میں تم کوئی بہت اعلیٰ ارفا تھے۔ وہ ٹیلنٹڈ جو تمہارے ارد گرد لوگوں کے پاس ہیں، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ سعدی کی آنکھوں میں شدید ناگواری ابھری۔ سو تمہارا مطلب ہے مجھے کچھ نہیں آتا؟ ایکچولی جب تمہارے باپ نے مجھے قید نہیں کیا تھا اور میں اپنی دنیا میں رہ رہا تھا، تب لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ کبھی سوچا لوگ تمہیں کیوں پسند کرتے تھے؟ ہر شخص کے پاس ایک خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ تم لاک پکس جمع کرنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہارا ٹیلنٹ نہیں ہے۔ تمہیں ایک ہی چیز
करनी आती है ज़िंदगी में, और इसी चीज़ की वजह से लोग तुम्हें पसंद करते हैं। सदी के अब्रू ताज्जुब से उठे। क्या तुम्हारी बातें? व्हाट? उसे अजीब सा लगा। सदी, तुम्हारी कायल कर लेने वाली ज़ुबान ही तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट है। तुम लोगों को कन्विंस कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। उसे खुद भी यकीन नहीं आया था। क्यों? क्या तुमने अभी मुझे कन्विंस नहीं किया कि हाशिम मेरे पीछे खड़ा है? वो चौंक कर उसे देखने लगा। अभी ने सर झटका। ऑल राइट, मेरा काम खत्म हुआ। तुम जानो और हाशिम जाने। वो एक गहरी नज़र उस पर डालती बाहर निकल गई। सदी नाखुशी से खड़ा उन्हीं अल्फाज को सोचता रहा। अक्टूबर के वस्त से मौसम बदलने लगा था। सरमा की पहली दस्तक सुनाई दे रही थी, मगर थाने के अंदरून वही खौफ, वहशत और तशद्दुद का मौसम था। वो एक कमरे में कुर्सियों पर बैठे थे। जुमर की वजह से उसकी चंद सहूलतें मिल जाती थीं, जिनमें कि वक्त बे वक्त की मुलाकातें भी थीं। वो खामोश, संजीदा सा पलकें सुकेड़कर अहमद को देख रहा था, जबकि वो वजाहत दे रहा था। देखो, मिसेस उमर ने वाकई मुझे हायर किया था, लेकिन तुम्हें फंसाने के लिए नहीं। मैं क्राइम प्रिविलेज के तहत तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्यों हायर किया था उसने तुम्हें? उसकी चुभती नज़रें अहमद पे थी। वो तो मैं तुम्हें अब भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये वर्क एथिक्स के खिलाफ है। अगर ये तब गलत था तो ये अब भी गलत है। वो बता दें तो अलग बात है, लेकिन मुझे हमारी दोस्ती बहुत अजीज़ है, इसलिए मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। कर लिया। और कुछ? उसका लहजा ठंडा और निगाहें हनूस पुरतफीज थीं। अहमद गहरी सांस लेकर पीछे हुआ, फिर सोचते हुए कंधे उचकाए। मतलब तुम वाकई सोच सकते हो कि चुड़ैल मिसेस उमर तुम्हें यूँ जेल भिजवा सकती हैं? मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया काजी। तो साबित करो। वो सपाट लहजे में कहकर पीछे को हटा। अहमद की आंखों में अचंभा उभरा। कैसे? मुझे एक शख्स से मिलना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए, वो कह रहा था, मगर अहमद की आंखें फैली, फौरन हाथ उठाकर रुका। देखो काजी, मैं बेशक प्रिजन राइट्स पर यकीन रखता हूँ, लेकिन ये प्रिजन राइट्स से ऊपर की बात है। फिर आवाज़ बेचारगी से नीचे की। यार तुम हवालात में हो, 15 मिनट के लिए भी हम तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम्हारे पास मेरे जुडिशियल रिमांड तक का वक्त है, 2 हफ्ते। उंगलियों की वी बनाकर दिखाई। मुझे उस शख्स के पास जाना है। या तो तुम और तुम्हारी क्लाइंट ये सब अरेंज करके दोगे, या मैं खुद जेल तोड़कर चला जाऊँगा, कभी वापस ना आने के लिए। कौन सा ऑप्शन बेहतर है? अपनी क्लाइंट से पूछकर बता देना। वो जितनी सुलगती और कतियत से कह सकता था, आमिर बेबसी से उसे देख के रह गया। जिंदगी में पहली बार उसने सोचा था कि प्रिजन राइट्स जाएं जहन्नम में। अरे इन कैदियों को तो उल्टा लटका के दर्रे मारने चाहिए। कौन है वो शख्स? एनेक्सी के बरामदे में नवारिद हुई सरमा की शाम छाई थी। वो नहीं था तो मौसम की गर्मजोशी भी हर रोज़ नापैद होती जा रही थी, और खौफ का कहर फिजा में रचता बसता जा रहा था। बरामदे में आधे बंदे घुंघराले बालों वाली जुमर सीने पे बाजू लपेटे खड़ी संजीदगी से सामने खड़े अहमद को सुन रही थी, जो बेचारगी से कह रहा था, प्लीज़ मुझ पे चिल्लाइएगा मत, मुझे कानून भी मत समझाइएगा। मुझे मालूम है ये सब कितना गलत है, मगर वो उससे मिलना चाहता है। बात ख़त्म करके उसने डरते डरते जुमर के तासुरात देखे। वो खामोश खड़ी थी, चेहरा नॉर्मल था। वो उससे अब क्यों मिलना चाहता है? इतना अरसा जब वो बाहर था तब क्यों नहीं मिला? मैंने भी यही पूछा था। वो कहता है कि पहले वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था, मगर अब वक्त नहीं है। पैगंबर ने हिचकिचाते हुए पैगाम दिया। ठीक है, वो उससे मुलाकात करना चाहता है तो हम करवा देंगे मुलाकात। वो गहरी सांस लेकर बोली। अहमद का मुंह खुल गया। व्हाट? मतलब कि? फिर मुंह बंद किया। खौफकी से उसे देखा। अब वो इसका मुतालबा बुरा नहीं लगा? नहीं, वो सच्चाई जानना चाहता है। तो सच्चाई जानने का बेहतरीन वक्त दौरान कैद है। अगर वो आज़ाद होता तो कुछ कर बैठता, लेकिन अब उसे बर्दाश्त करना होगा। जुम्मन ने शाने उचकाई। वो सारी जमा तफरीक कर चुकी थी। यानी आप सच्चाई जानती हैं? ऑफ कोर्स, ये मेरा मसला नहीं है। जल्दी से अपनी हद में वापस आया, मगर हम उसको हवालात से निकालेंगे कैसे और वापस कैसे लाएंगे? ये बहुत ख़तरनाक है। मैं कर लूँगी, थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए होगी। और हाँ, ट्रायल के लिए मुझे एक इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत है। 25,000 फ़ी घंटा। राइट? ज़रा नरमी से पूछा। अहमद उदासी से मुस्कुराया। मुझे आपसे कोई रकम नहीं चाहिए। मैं सुबह आऊँगा, हम तब मामला डिस्कस कर लेंगे। ज़रा रुका। वैसे मैं वही हूँ जिसको एक ज़माने में आप कोर्ट में खड़ी प्रोसिक्यूट कर रही थी। और अहमद उसकी एक नज़र काफ़ी थी। वो दोनों हाथ उठाए जल्दी से बोला। ऑफ कोर्स, आपको याद है। मैं चलता हूँ।
तभी बरामदे का दरवाज़ा खोलकर हनैन तेज़ी से बाहर निकली। अहमर को देखकर टटकी, फिर ज़रा की ज़रा खफा नज़र उस पर डाली। अहमर अलविदाई कलमात कहकर बरामदे की जीनें उतरने लगा, मगर वो देखने का खुशमगीन अंदाज बार बार उसको खटक रहा था। कंपेन ऑफिस में बैठे वो उसी सोच में गुम था जब फातिमा ने उसके सामने कॉफ़ी का मग रखा और मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठी। अहमद ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो ग्लासेस लगाने वाली गोरी और दिलकश लड़की थी। तुम्हारे ख्याल में वो मुझे हर दफ़ा इतनी नागवारी क्यों दिखाती है? संजीदगी से पूछा। फातिमा ने खून भरते शाने उचकाए। शायद तुम्हारी किसी बात से हर्ट हुई हो। नहीं, मैंने तो दोनों दफ़ा मुख्तलिफ बातें कही थी, मगर मुझे हमेशा ये लगता है कि वो लड़की सादी की बहन, वो मुझसे इनसिक्योर रहती है, जैसे उसे मुझसे कोई ख़तरा है। नफ़ी में सर हिलाते वो जैसे उलझा हुआ था। उस लड़की के साथ कोई मसला ज़रूर है। अहमर फातिमा आगे हुई और दिलचस्पी से बोली, इस कैंपेन में हमने कितने मसले हल किए हैं? कोई पजल पहले हमसे बच सका है क्या? नहीं। वो भी दिलचस्पी से आगे हुआ। ऐसा करो, इस लड़की के बारे में हर मालूमात मुझे ढूंढ कर दो ताकि हम कोई लिंक जोड़ सकें। रॉजर बॉस, लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं? उसकी फैमिली तो तुम्हारी दोस्त है ना? हाँ, वो मेरी दोस्त है, लेकिन मैं मुतजस्सिस हूँ और जब तक मैं इसको हल नहीं करूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो बहुत बेचैनी से कह रहा था। फातिमा ने टेक लगाते सर को खान दिया और कॉफ़ी के घूंट भरने लगी। कमरे में टीवी का बेहंगम शोर गूंज रहा था। सदी बेड पे लेटा पैर कैंची सूरत बना रखे थे और गैर दिलचस्पी से दीवार पे नस्ब स्क्रीन देख रहा था, दी घोस्ट एंड दी डार्क नाइट्स, जो वो कितनी दफ़ा इन गुजरे दिनों में देख चुका था। इसके कदमी सख्त कबीता खातिर लग रही थी। टीवी पे सिर्फ डीवीडीज चलती थी, कोई चैनल नहीं आता था। उकताकर उसने टीवी बंद किया। कमरे की खामोशी अजीब लगने लगी। उसने सर हाथों में गिरा लिया और सोचने की कोशिश की कि वो इतना बेसुकून क्यों है, मगर अगले ही लम्हे चौंका। स्क्रीन में सुकून कब और किसको मिला था जो उसे मिलेगा? भले वो टीवी स्क्रीन हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन सुस्ती, बेसुकूनी और बेजारी इनायत करती है अगर ये अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो। वो उठा और बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद गीले हाथ, पैर और चेहरे के साथ बाहर निकला और अपना कुरान लेकर स्टडी टेबल पे आ बैठा। पता है क्या, अल्लाह ताला इस स्क्रीन की नमाज और कुरान के साथ हमेशा एक जंग छिड़ती रहती है। जितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में स्क्रीन आती है उतनी हमारी नमाज कम होती जाती है, और जितनी नमाज आती है उतनी ही स्क्रीन खुद ब खुद जाने लगती है। हम बैक वक्त दो दिल नहीं रख सकते। हया से आरी दिल और मोमिन का दिल, ये एक सीने में साथ नहीं रह सकते। खैर, आज कौन सी सूरह पढ़ूं? उसने सफ़े पलटने शुरू किए। वही बेतरतीब कुरान की रोटी और चंद सूरतें आगे पीछे से पढ़ता था, मगर तुमको सिर्फ वही कैसा सुनाना चाहिए। जब वो चोंटियों की सूरह पढ़ता था सो आज भी उसने अल-नमल खोलकर तौबा और तस्मीया पढ़ा। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। उसने आयात देखी। मलका सबा को सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मिल चुका था और उसको पढ़ने के बाद का किस्सा कुछ यूँ था। वो कहने लगी उसे सरदारों से, मुझे मेरे काम में मशवरा दो। तुम्हारे हाजिर होते हुए मैं खुद से कोई कतई फ़ैसला नहीं करने वाली। उन्होंने कहा, हम कुव्वत वाले हैं और सब ज़ोर वाले हैं और मामला तुम्हारे हाथ में है, तो देख लो कि तुम क्या हुक्म देती हो। तो क्या मतलब हुआ इन आयात का? सादी दान से निचला लब दबाते सोचने लगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकतूब को जिसमें लिखा था कि मेरे पास मतीयो फर्माबरदार बनकर चली आओ। इसके बाद मलका अपने लीडर से मशवरा लेती है कि उसे क्या करना चाहिए। मशवरे के लिए यहाँ पर अफ्तूनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी मुझे फतवा दो। अल्लाह ताला अपने मशवरे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, फतवे का किया। फतवा कहते हैं किसी मुश्किल मसले के जवाब को। मुझे इससे ये समझ आया अल्लाह ताला कि फतवा जवाब होता है जब मांगा जाए तब दिया जाए, ये नहीं कि जगह जगह उठते बैठते हम हर किसी पे फतवे लगाते जाएं। और मलका का किस्सा एक तरफ, हमारे यहाँ हर गली का मौलवी और हर यूनिवर्सिटी का इस्लामिक प्रोफेसर भी फतवे लगा देता है, जबकि इस्लाम में हर कोई फतवा देने का अहल नहीं होता। मुफ्ती का मुकाम हासिल करने के लिए ख़ास तकाज़े पूरे करने होते हैं। वो कह रहा था और कमरे का वहशतनाक सन्नाटा अब आहिस्ता आहिस्ता सुकनियत भरी खामोशी में बदल रहा था।
वैसे इंसान को हमेशा मशवरा करना चाहिए। मशवरा इंसान को रुसवाई से बचा लेता है। बेहतरीन मशवरा अल्लाह से मशवरा होता है और बेहतरीन फतवा दिल का फतवा होता है। आखिरी फतवा। खैर, उसने सफ़े को देखा। मलका ने मशवरा मांगा तो सरदार ने अपनी ताकत भी वाज़ह कर दी और आखिरी फैसला भी मलका के हाथ में दे दिया। फिर आगे क्या हुआ वो पढ़ने लगा। वो कहने लगी कि बेशक जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ फसाद करते हैं और वहाँ के रहने वाले इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील कर देते हैं, और वो इसी तरह किया करते थे। सदी को कुछ याद आया। अल्लाह ताला, ये आखिरी अल्फाज, और वो इसी तरह किया करते थे, उनके बारे में दो आरा है ना। पहली राय ये कि ये मलका ही का कौल है, मगर मुझे दूसरी राय ज़्यादा बलीग मालूम होती है कि ये अल्लाह ताला का तबसरा है मलका की बात पे कि वाकई ताकत के नशे में गुम लोग दूसरों की इज़्ज़तों की परवाह कहाँ करते हैं। कमरे की वहशत किसी हद तक कम होती चली गई। उसका मुंतशिर जहन धीरे धीरे किन देर बाद फोकस कर पा रहा था। वो अरबी में अगली आयत पढ़ने लगा। और बेशक मैं भेजने वाला हूँ इन सुलेमान की तरफ एक हदिया, फिर देखती हूँ कि हमारे कासिद किस चीज़ के साथ लौटते हैं। वाह मलका, मशवरा आपने ज़रूर मांगा सरदारान कौम से, लेकिन आखिरी में की तो आपने अपनी मर्जी ही। वो मसनूई सा खफा हुआ। मुझे हमेशा ये आयत पढ़ते हुए लगता है कि मलका एक तो अपने लीडर्स को चेक कर रही थी, दूसरा वो जंग के बजाय अमन के पैगाम को जस्टिफाई भी कर रही थी। चूंटियों की मलका की तरह वो भी अपनी कौम के लिए मुखलिस थी और सब कुछ सोचती थी। वो कतई फैसला कर सकती थी, मगर थी तो वो एक औरत ही। उसको एक फ़ैसला लेने से पहले बहुत से लोगों को इस फैसले की वजाहत और सफाइयाँ देना थी। वो मलका होकर भी चूंटी थी, मगर वो दुरुस्त थी। औरत अगर कभी ख़ानदान में दब जाए, जाहिरियत का जवाब भी सुलह सफाई से दे और बज़ाहिर चूंटियों की तरह अंधी और खामोश ज़िंदगी में गुजारा करे, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं होती। बहुत से लोगों के सुकून के लिए अपनी अना की कुर्बानी देना बुरा कैसे हो सकता है भला। सदी ने सर झटका और तवज्जो अगली आयत की तरफ मरकूज़ की।